What is difference between collection interface and collection class? Collections class. Collection is an interface and it is included in java.lang package. It is also used for the grouping of objects. And collection is a class. It is a Collections. Collections is a class. It include the java.util package. It is used for the particular operation, insertion, searching and sorting. Submit. Collection is a class, whereas Collection. Abstract collection is a class, and abstract collections is a class, and collection. Who said abstract? Why abstract? Collection is a class, and collections is an interface. Wrong. Collections is a Class and collection is Collections is a class. Collection is an interface. Methods of the collection are reverse, sort, and methods of. So you got confused. Collections is a class. Collection is an interface. Collection hierarchy has list and set. Okay, two interfaces, and list further derives to array list, vector linked list, and set further derives to hash set and all. Collections is a class which gives extra features to collection hierarchy. ठीक है, सेंटेंस याद रहेगा. Collections is a class which gives extra feature to collection hierarchy. For example, sometimes if we need to do sorting or some like reversing, getting minimum number, maximum number, then we go for collections class. तो ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज करता है, याद रहेगा. What is difference between hash map and hash table? Hash map is a part of the collection, whereas the hash table is a legacy class. Second thing, in both, in hash map, duplicates are not allowed. Second thing, they are the order. Third thing, Completely wrong. hash map is a unordered, where the तो फर्स्ट थिंग इज हैश मैप एंड हैश टेबल आर की पेयर. key values. हाँ ठीक है, तो डुप्लीकेट वाला कुछ है ही नहीं, आप सेट और लिस्ट की तरफ चले गए. ठीक है, हाँ जी. Hash map is a key value pair, and it's a hash table is a legacy class. It's also the key value pair, and hash map is not in order, and hash table also. हाँ, some are correct, some are wrong points. Hash map extending map interface. Hash table extending directory class. Hash map was introduced in 1.2. Hash table was introduced in 1.0, so it's known as a legacy class. Hash table does not allow null, whereas hash table allows a single null key and multiple null values. Hash map is a faster. Hash table. It was wrong. Null values क्या बोला? Hash map allows a single null key, but multiple null values. Hash table doesn't allow null. Correct. Then hash map is a faster. Hash table is slower. Hash map synchronizes all. We can synchronize hash map, but in hash table we can synchronize some portion of the. No, synchronized point is hash map does not have methods with synchronized keyword, but hash table class has all methods with written with synchronized keyword. It's very simple. ठीक है. Now, which is better way, like array list AL equal to new array list or list L equal to new array list? Two options you have, like list L equal to new array list, list L equal to new array list, array list AL equal to new array list. Which you will prefer and why, and in which cases? No, array list AL equal to new array list. ठीक है. दूसरा पॉइंट लिखो, list L equal to new array list. So you have two options to use. Which one you will prefer and why?
And there is nothing good or bad. It's simply you need to explain both. We like to go with the second option, list L, because in this feature we are also getting the chance to use array list as well as the feature of the list. No. My point of view, array list AL equals to new array list because it's a subclass of list. It gives all features of list. So it's better way to use array list. Sir, if you are using a list, L is equal to new array list. In that case, as if we are going for array list, L is equal to new array list, we are going to get all. As it is a subclass of the list, we are going to all the methods, or we are going to inherit it, all the properties of the list. So second point is better. At least array list L is equal to new array list. And if I go for list L is equal to new array list, then the methods of the array list will get overwritten in list. But that's we are getting inherited. Okay. So how I'll answer this question is, out of these two lines, I'll go with list L equal to new array list. But sometimes I may need to go with array list AL equal to new array list also. Now why I will prefer list L equal to new array list is because list is giving standards like these many methods I have. Okay. Array list also have some 10 methods. List also have some 5 methods. That can be possible. You know that. Array list implements list. Means you must need to implement all methods of list into array list. But you can have extra methods. Now, here with this, if I implement all logic L dot add, L dot something, so that is okay. So in future, in tomorrow, I may add there list L equal to new vector also. Correct. तो एक गारंटी रहती है कि लिस्ट के अंदर की मेथड ही कॉल होगी, क्योंकि लिस्ट वालों की मेथड वेक्टर ने भी लिखी है, अरे लिस्ट ने भी लिखी है, तो मुझे बस वो न्यू अरे लिस्ट की जगह क्या करना पड़ेगा, न्यू वेक्टर. समझ में आया? पूरा करते बैठने की ज़रूरत नहीं है. बट अगर आप अरे लिस्ट एल न्यू अरे लिस्ट लिखते हो, एल डॉट अगर आज मेथड कॉल की, कल जाके वेक्टर करोगे, वेक्टर वी इक्वल टू न्यू वेक्टर, इट्स नॉट गारंटेड सेम मेथड्स विल बी एग्जिस्ट इन अरे लिस्ट और वेक्टर. अंडरस्टूड हुआ? What is superclass class of array list? Is there any superclass exist? Class of Array list. Abstract list. What is superclass of abstract list? Means array list, उसके ऊपर है abstract list, उसके ऊपर है abstract collection. समझ में आया? याद रखोगे. इधर पता है abstract list, abstract collection. Sajin, out in map is interface or class? Map is an interface. Interface. So how many classes are there bottom to it? 4 classes are कौन? there is a hash map, hash table, then link hash map, tree map. What is the difference between linked hash map and hash map? link hash map and hash map. बताओ ना. नहीं. Is hash map is ordered or unordered? Hash map is unordered. Unordered, sir. And link hash map is ordered. Correct. Link hash map is depend on the node, whereas a hash map is depend on the index order. So the difference, very basic, simple difference is like hash map is unordered completely, ठीक है? But linked hash map is ordered, you can say, means elements जिस ऑर्डर में हम उसमें डालते हैं उसी ऑर्डर में रिट्राई होते हैं. बट हैश मैप में ऐसा नहीं, ऊपर नीचे भी हो जाता है वो, इसलिए कुछ नहीं कर सकते. इधर याद रहेगा. That is same. Duplicate keys are not allowed in both. Hash map is a On the super so class, keys- and we can say link hash map. So, No. so in hash map and link hash map, keys, if keys are duplicate, in that case it is not allowed. But if values are duplicate, Yes, then that is allowed. That is allowed. So keys are duplicate are not allowed. What is the return type of put method of hash map? Put method returns object.
Now about that object I'll speak. That is null. Object is null provided key is not duplicate. But key is duplicate, then value will get returned. If key is duplicate, then value will get returned. Understood? It's not boolean. Add method का जो है वो return type boolean है. If key is duplicate, then it returns the objects. Means it returns the value of key. And if is not duplicate, is return the null. What is return type of put method? Object. Can you explain that? Put method is used for the hash map. Whenever the keys are duplicated, then it returns the null and it returns the value. अभी null बोला ना, फिर अब value बोल रहे हो. If key is duplicate, अभी बोला ना null, it returns null. मैं फिर से एक बार repeat कर रहा हूँ. If key is duplicate, while putting a value, if it found that the key is duplicate, then new value will be kept there, but the older value will get returned. समझ में आया? But if key is not duplicate, this is unique key, first time you are putting, then it returns null. Very simple. In set, there is add method. Hash set, you know add method. What is the return type of it? Booleans. Boolean. Right. On what basis you think it gives true or false? Understood the question? Now, add method of set gives value as a true or false. Correct? On what factors it might be giving कि चलो भाई अभी true दे देते हैं. क्या ऐसा हो गया कि true दे देगा? Question समझ में आया ना? हाँ. If element added, then it gives true. If element added, it gives true. Then, if element not added, then it gives false. In which case, you think element will not get added? Understood the question? Yes, sir. Huh. You know set? Yes, sir. In which case you think element will not get added? You don't know set. Duplicate. Duplicates. Don't have common sense. एक सिंपल है कि डुप्लीकेट अलाउ नहीं करता, तो नहीं करेगा तो फॉल्स देगा कि नहीं, अभी बताने की जरूरत पड़नी चाहिए क्या? सही है कि नहीं? ओके. नाउ माय क्वेश्चन इज व्हाट इंटरनली दैट ऐड मेथड डू ऑफ सेट. व्हाट इंटरनली ऐड मेथड डू ऑफ सेट. ठीक है, व्हाट इंटरनली ऐड मेथड विल डू ऑफ सेट. It checks whether objects are duplicate or not. I am speaking about objects, not about primitives. Question is clear? समझे क्या बोल रहा हूँ? Objects. It's not about 5 है duplicate तो हाँ false बोलता है. But अभी student का yes है, फिर yes1 है, yes2 है. Then Equals. what factors? It will check the reference and then from the take the hash code. And then from hash code it will check whether that reference values or have hash map value is. So which methods you need to override in your Pojo class? Hash code and equals. समझ में आया? Write down student class and write down hash code and equals method. Write down class student having two variable age and location. Age and location. Now you show me there how you will override hash code and equals. Tree set. Tree set implements which interface? Question समझ में आया? Set. Directly set it implements or something else? Sorted. Set. ठीक है. I want to sort my array list. How to sort? Array list. Collections dot sort. Array list का object. तो sort हो जाएगा. और कोई तरीका पता है? Reset के constructor. ठीक है. ऐसे बताओ, रुक जाओ. क्या है दूसरा तरीका? अभी सुना भी नहीं आपने? Collection के constructor में नहीं, गलत नहीं सुना. Collections dot sort and there you will pass array list object AL. समझे? Second way is you can pass that AL object into tree set.
Correct. Now you tell me what is difference if you do by collections dot sort and if you do by setting by passing that AL object in tree set. क्वेश्चन समझ में आया? क्या फर्क है? दोनों सॉर्टिंग तो दोनों में होगी. फिर कंपैरेबल इंटरफेस टू सेट इंटरनली कंपैरेबल इंटरफेस यूज करके. मैंने पूछा क्या? सिंपल है. दोनों के आउटपुट में कोई डिफरेंस आएगा कि नहीं? हाँ आएगा. हाँ. रीसेट में नहीं आप बताओ. रीसेट में डुप्लीकेट्स रिमूव कर देते. समझ में आया? उसमें भी सॉर्टिंग होगी पर डुप्लीकेट रिमूव होंगे. सेट पड़ा ना, सेट में डुप्लीकेट अलाउ होते हैं क्या? फिर ट्री सेट के अंदर लिस्ट डाली तो सॉर्ट करेगा, अपना काम करेगा वो, और दूसरा नुकसान क्या कर देगा? अब समझे? सर उसमें नल वैल्यू होगी तो भी वो बोला क्या अभी? सही है ना? आपको क्वेश्चन क्या चल रहा है? कलेक्शन डॉट सॉर्ट में एल डाला और ट्री सेट में बोलिए नल के बारे में क्या बोलना चाह रहे हो? सर सेट में ट्री सेट में जो लिस्ट डाली ना उसमें जब नल आएगा तो बीच में प्रॉब्लम हो जाएगा. तो ये आपका नॉलेज है और ये यहाँ आप बताओगे तो आप खुद ही फंस जाओगे. फिर से उसने सिंपली इतना बोला ना, आपको नहीं लग रहा है वैलिड आंसर जो मैंने बोला? इसमें सॉर्ट है, इसमें डुप्लीकेट नहीं, खत्म होगी बात. आप उसको, ये अलग क्वेश्चन हो गया बाद में. ठीक है. ट्री सेट में नल डाला तो क्या होगा? ऊपर रहेगा नीचे रहेगा? क्वेश्चन नहीं समझा दोबारा पूछो. ट्री सेट के अंदर ए डाला, फिर बी डाला, सी डाला, डी डाला, फिर नल डाल दिया, फिर जा भी सकता कि नहीं? कंपाइल होगा कि नहीं कोड? ट्री सेट है, उसमें ए डाला, बी डाला, सी डाला और में नल डाला. रीसेट में नल सिर्फ पहले इंसर्ट कर सकते हैं फर्स्ट एंट्री. ओके. उसके बाद नल नहीं कर सकते. सही है कि इनका? पहले 3 तो ऐड हो जाएंगे, फिर नल नहीं होगा. ऐसा ऐड ही मतलब कंपाइलर रोक देगा क्या? क्वेश्चन समझ में आया ना? कंपाइलर रोक देगा या रन टाइम रोकेगा या अलाउड ही नहीं है? वो कंपाइलर रोक देगा उसे. नल डालने ही नहीं देगा. सर फर्स्ट टाइम में नल आएगा, उसके बाद में आएगा, उसके बाद में एलिमेंट ऐड किया तो हो जाएगा. मेरा क्वेश्चन समझ में आया क्या? मैंने क्या बोला? पहले ए डाला, फिर बी डाला, फिर सी डाला, फिर नल डाला. तो आप इतना क्यों बता रहे हो कि पहले नल डालो? जितना बोला उतना ही बताओ ना. नल पॉइंटर एक्सेप्शन आएगा उसमें. अब नल पॉइंटर आ जाएगा क्या? कंपाइलर कंपाइल करने देगा नहीं करने देगा? कंपाइलर करेगा सर पर रन टाइम एक्सेप्शन. तो ये इतना समय लगता है कि आधा घंटा आंसर लाने के लिए घुमा फिरा के इधर उधर घुमा रहे हो उसको. सीधे सीधे समझ में आया तो बराबर दे सकेगा आंसर. तो आज लिखना कि मुझे ये आंसर नहीं आया. समझे? और ये नहीं आया मतलब अगेन डोंट रीड वर्बली ओरली समवेयर, यू हैव टू प्रैक्टिस इट. समझ में आ रहा है? कलेक्शंस आई एम नॉट आस्किंग यू इन डेप्थ ऑल्सो. Still you are not able to give answers. Now Sachin, you have two options. You have array list, you have vector, you have linked list. 3 options you have. You want to add a data. Which option you will select on what basis? पहले क्वेश्चन समझ में आया आराम से? ठीक है. अब बताओ. I like to go with the linked list. No, I am not asking you which is preferable and all. Just I am asking you, it's not about your liking. What I need is which you will use when. Simple. When I want to data to be synchronized, in that case I will go with the array list and linked list. नहीं. If I want insert the data sequentially, then go for array list. If I want to retrieve something middle of the list, then we go for linked list. If you want to synchronize No. Question understood. Which one is which one? Not preferable. You have 3 options. So now you will say I will use array list if I need this to be done. Then you will say I will use vector if this to be achieved. बॉक्स नहीं हाँ बस यही है ना? बोलो. I will use linked list for adding the data as well as for removing the data, because linked list is faster than the array list. Even indexed is maintained in the linked list as same as that of the array list, but I want faster operation, then I will go for the linked list. I will go for the vector if I want to achieve the synchronized operation. But linked list and array list, even both can be synchronized by using method of a
collection named called as collection dot synchronized. आप कब क्या करोगे? जब when I have a small number of data, then I will go for order. When I need order collection, then I will go for array list. When I need synchronization in that, I will go this vector. And when I have large data, and I have to do the more operations, then I will go for the list. When I want to only add the data, I will go with the array list. When I want to delete or remove data from my list, then I will go with the linked list. And when I want to do synchronize operations, that is more secure, then I will go with the vector. If I want to fetch the data from database, then I will go for array list. What is the relationship between database and array list? Is there any relation? Database. Now you said no. I want to fetch data Select operation. from. Database. Why you are bringing database into this? database बोला नहीं ना? No. I want to add the data, huge amount of data, then I will prefer to array list. If operations like update and delete, then I will go for linked list. If I want synchronized result, then I will prefer vector. See, you have three options: array list, linked list, and vector. Why I'll go for array list is if huge amount of data is I have and I don't care frequency of deletion and retrieval, and I want index to be maintained properly, then I'll go with the array list. ठीक है. I have a lot of features there. If I want elements to be added, but I know that requirement is saying कि like lot much deletion, addition, in between something is getting inserted, ठीक है, then I'll go for linked list because it will be faster. And why not array list? Because in between if something happens, then what happens in array list is array list के अंदर क्या हो जाता है कि वो पूरे एलिमेंट पीछे शिफ्ट होंगे या तो ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं, तो इसलिए टाइम लगता है, तो हम वो सब नहीं करते. बचा क्या? वेक्टर. वेक्टर क्यों है? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि कैपेसिटी का कोई कंसेप्ट यूज़ करना है मुझे, उसमें कैपेसिटी बहुत ज़्यादा बफरिंग टाइप में होता है. और अदरवाइज जो सब लोग मिस्टेक कर रहे हैं, डेटा सिंक्रोनाइज बोल रहे, डोंट से लाइक दैट. सिंक्रोनाइज ऑपरेशन बोल रहे, डोंट से दैट. वेक्टर के अंदर सिंक्रोनाइज्ड मेथड्स. तो आपको क्या बोलना है कि वाइल एडिंग एलिमेंट्स, इफ आई वांट टू टेक केयर दैट एट अ टाइम ओनली वन पर्सन कैन ऐड एलिमेंट बिकॉज ऐड मेथड इज सिंक्रोनाइज, करेक्ट है ना. और उसी समय अगर दूसरा बंदा भी ऐड करता है बाय यूजिंग सेम रेफरेंस सेम थिंग, देन आई विल स्टॉप देम. कुछ समझ में आया? वो भी आपको पता होगा सिंक्रोनाइज का मतलब तो तब काम में आता है जब दोनों भी एक ही रैम के अंदर हो. आप वेक्टर वी न्यू वेक्टर लिखो एक सर्वलेट में, समझे? प्रोजेक्ट करते ना हम, लॉगिन सर्वलेट डॉट जावा, सबको पता है. मैं भी कॉल करता हूँ लॉगिन करते समय उसे, और आप भी करते हो जब होस्टिंग करने के बाद. नहीं क्या समझ में आया कुछ? मैं भी वो सर्विस मेथड में जाऊंगा, आप भी जाओगे. सर्विस में पहली लाइन लिखी है वेक्टर वी न्यू वेक्टर लिखा है, कुछ इमेजिन हो रहा है. सर्विस मेथड की पहली लाइन क्या है? वेक्टर वी न्यू. मैं भी गया वहाँ पे, आप भी गए हो, कितने ऑब्जेक्ट बने? बने किसके? वेक्टर के. दोनों को रैम अलग अलग मिली. उसके बाद उसके तुरंत नीचे लिखा है वी डॉट ऐड, समझे? तो एक समय एक ही बंदा ऐड करेगा, दिस इज क्वेश्चन, और दोनों अपना इंडिपेंडेंटली चलेंगे, समझे? समझ में आया? तो कुछ फायदा हुआ कि सिंक्रोनाइजेशन का? अभी तो नहीं हुआ है, क्योंकि मैं मेरी रैम में कर रहा हूँ, वो उसके रैम में कर रहा है. अब समझे? तो केयरफुल रहना है जब सिंक्रोनाइज बोलते हो, तो बोलना कि सिंगल ऑब्जेक्ट पे अगर एडिशन वगैरह हो रहा है, सिंगल ऑपरेशन पे अगर एडिशन वगैरह हो रहा है, तब जाके सिंक्रोनाइजेशन का फायदा है ना. तो थोड़ा सा आप अंदर जाके भी तो बता सकते हो कि ऐड मेथड, इफ आई वांट टू डू सम आई वांट टू यूज सिंक्रोनाइज्ड मेथड, देन आई विल गो फॉर वेक्टर, बट आई नीड टू बियर सम कॉस्ट फॉर इट, दैट इज स्लोनेस, समझे? इन मल्टी थ्रेडिंग ऑपरेशंस. समझ में आया क्या? ठीक है. नाउ सिमिलरली यू हैव थ्री थिंग: हैश सेट, लिंक्ड हैश सेट एंड ट्री सेट, है ना?
कौन सा कब करोगे यूज? सुना ही नहीं क्या? ये बहुत पैदल गाँव है। नहीं सुना तो चाहिए, बताओ ना। तो हिंट मिल गई होगी, 3 चीजें तो है। हाँ बताओ, सेट के अंदर 3 क्या क्या है? ट्री सेट, लिंक ट्री सेट, लिंक। इधर क्या क्या है सेट के अंदर? 3 has set, हाँ। link has set and trace set. ट्री सेट, समझ में आया? इधर मयूरी 3 है ना? हाँ बताओ, व्हेन यू विल यूज विच? If I want to maintain order, Hmm. order, I want to go through order, then I will get the has, linked has. If I don't want to maintain in order, then I will go for has set. Hmm. And I want to elements. I don't want to allow null elements. You don't? Null No. If you need sorting, you must use tree set. Clear? If you want to add element, you don't want duplicate anyway because it is set, but the order should get maintained, then you will use linked hash set. If you don't care what is there, only duplicates, then you will use hash set. समझे? तो कोई भी पॉइंट कहीं भी जाके चिपका नहीं देना। क्लियर? वेक्टर के नीचे क्या आता है? स्टैक। तो क्या कौन सी मेथड उसमें आपने कुछ एक्स्ट्रा देखी? क्वेश्चन समझ में आया? एक्स्ट्रा छोड़ो, कुछ मेथड्स बताओ स्टैक। Pop, हाँ सचिन। पोल, ऑफर, पिक। सुना ही नहीं। व्हाट इज पोल? Push is empty. पुश Pop और is empty. फर्स्ट मेथड क्या है? Push, हाँ और pop हाँ is empty. हाँ। Uh, Again, interviewer is not interested much in this EMT. What he said, Push like to point pick. pick. क्या करता है वो सब तीनों? पॉप है जो टॉप मोस्ट एलिमेंट है वो रिमूव करता है। पिक से हाँ, पॉप क्या करता है? टॉप मोस्ट रिमूव कर देता है। सही, हाँ फिर टॉप मोस्ट वाला रिटर्न करता है। टॉप मोस्ट वाला, रिटर्न हाँ और पुल पुल इंसर्ट कर देता है। कहाँ पे? स्टार्ट टॉप। फर्स्ट सो अगेन यू विल रीचेक इट। क्वेश्चन लिखा क्या है, समझ में आया? क्या नहीं आता समझ में आया? मेथड के नाम तक हम कंफ्यूज हो रहे हैं, इनके 3 और आपके 3 भी मैच नहीं कर रहे हैं। ठीक है, जो भी है, दैट इज नॉट प्रॉब्लम। इधर क्या लेवल है इस क्वेश्चन का आपका? सुना सा लग रहा है बस, और कुछ नहीं पता। सिंपल है नहीं, और इधर स्टैक ही सुन के रखा है बस, उसके नीचे की मेथड ही नहीं पता। इधर नाम सुना है और किसके अंदर आता है वो पता है, उसके अंदर का कुछ नहीं पता। समझ में आया? इज देयर एनी क्यू इन कलेक्शन फ्रेमवर्क? QUEV है? कहाँ आता है वो? किसके नीचे आता है? सेपरेट ही है। बिल्कुल सेपरेट है। सेपरेट मतलब मैप जैसा, collections के- मैप जैसा है। हाँ। मैप अलग है, वैसा क्यू है। नहीं कलेक्शन के राजू में लिस्ट है। कलेक्शन क्या है राजू में? लिस्ट के नीचे, लिस्ट के अंदर, लिस्ट के नीचे ही क्यों है? ओके। इधर कलेक्शन क्या, इधर से तो सुना ही नहीं होगा। कहाँ पे है? तो कहाँ है बताओ ना एग्जैक्ट। ओके, तो मतलब ऐसा लिस्ट, सेट और क्यू है, सही है क्या? हाँ। और इधर किधर लिस्ट के अंदर, मतलब आई एम नॉट कंफर्म, यू नीड टू कंफर्म इट। ठीक है, हो जाए। बताओ कोई मेथड लिस्ट क्या? सेट आणि क्यूच्या मध्ये लिस्ट आणि क्यू हाँ, के अंदर पर इसके में नहीं ना, लिस्ट के अंदर नहीं ना। हमने लिस्ट के अंदर बोला ना, और लिस्ट के अंदर नहीं यार, लिस्ट के अंदर नहीं। फिर लिस्ट सेट क्यू। हाँ, इधर समझ में आया? क्यू कब इंट्रोड्यूस हुआ? 1.5 में आया क्या? 1.5 1.5 ऐसा क्या? उसके पहले था ही नहीं। स्टैक stack legacy legacy class. class 1.0. 1.0 से, और क्यू कब आया? 1.5 नोट करो उसको। You know the package called java.lang.concurrency something? Concurrency सुना है?
क्या पैकेज बोला मैंने? जावा डॉट लैंग डॉट कॉन्करेंस सुना है? बताओ व्हाट इज कॉन्करेंट हैश मैप? क्वेश्चन समझ में आया? हैश मैप सुना है कि नहीं? फिर सर कंसीडर मल्टी थ्रेडिंग हाँ तो बताओ ना कुछ। मल्टी थ्रेड सुना पढ़ा क्या पहले पढ़ा कॉन्करेंट? नहीं सर। फिर छोड़ो, ठीक है, मतलब कॉन्करेंट हैश मैप लिखा। व्हाट इज नेविगेशनल मैप? नहीं सुना। कब आया? 1.5 में आया कि 1.6? 1.6 करेक्ट। व्हाट डज इट मीन? navigation applications. To perform navigation operations. हाँ तो बताओ ना कैसे जाते हैं, क्या जाते हैं? कुछ भी बोलने का, वो जैसा बोला उसका आंसर वही, बस उसको तोड़ देने का बीच में ये नेविगेट करने के लिए होता है। व्हाट इज ऑटो बॉक्सिंग? बोलो। Automatic conversion of data type. वेयर यू सॉ दैट? So तो बोलो ना, तो क्वेश्चन। when we add the element, it will automatically convert into the object. We just add the integer into the add method. ऑफ सिंपली ऐड, मैं कहीं लूप में नहीं हूँ, कुछ नहीं हूँ। Of list. हाँ तो पूरा बोलना चाहिए कि नहीं? अब मैं समझदार हूँ तो आगे वाला तो नहीं रहेगा ना, आगे इंटरव्यूअर बस ऐड बोल दोगे, कहाँ भागे, वो बोलेगा हैश मैप में कैसे ऐड करते बताओ, फिर फंस जाओगे। तो प्रॉपर बोलो। हाँ बोलो फिर से दोबारा। हाँ When I use the JDK 1.5 after JDK 1.5, then it will when adding the element of the list, it will automatically convert the integer value into the object because add method accept only object. हाउ इट इज गेटिंग कन्वर्टेड इंटीजर? कैसे होता है? इंटीजर डाला, समझ लो AL डॉट एड 5 डाला, क्या करता है इंटरनली वो? Integer a is equal to ऐसा इतना बड़ा लिखते बैठता क्या वो? नहीं, उसके अंदर वो हाँ क्या डालता है? तो वही तो पूछ रहा हूँ। वो कन्वर्ट करता है हाँ तो क्या? इंटीजर ऑफ वो AL 5 जो है हाँ उसको कन्वर्ट करते हैं। इंटीजर a is equal to ब्रैकेट में इंटीजर और वो 5 ऐसा लिखता है कि इंटीजर आई इक्वल टू इंटीजर 5, न्यू इंटीजर। वेरी सिंपल। कहाँ घुमा रहे हो उसको? उसने क्वेश्चन क्या बोला? AL डॉट एड 5 लिखा, वो पूछ रहा है वो कि बाइट कोड में कैसे दिखेगा? तो कैसे दिखेगा? AL डॉट एड न्यू इंटीजर, खत्म हो गई बात। बट वो वैसा भी नहीं करता है, इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ करता है। क्या करता है? बट एनीवे दैट इज आल्सो करेक्ट, न्यू इंटीजर दैट्स ओके, वो तो उनकी मर्जी है। बट अल्टीमेटली व्हाई रैपर क्लासेस? हाँ सचिन क्वेश्चन अच्छे समझ में आया ना? अब बोलो। We have a primitive. So when you want to convert it into object format, so that's why wrapper was there introduced. That's why whatever the primitive values we have, we are converting it into object. We are considering it as the object. मनीष कहाँ पे आपने देखा है सर रैपर क्लास का? कभी आज तक यूज किया है क्या? Yes, array list 1.4 जब यूज़ करते थे तब उसको इंटीजर ऑब्जेक्ट को हम इंटीजर स्ट्रिंग के रैपर क्लास, तो वहाँ पे रैपर क्लास यूज किया था आपने। और कहाँ पे कहीं देखा रैपर क्लास? 1.5 में कहीं नहीं किया क्या? ऑटोमेटिक हो जाता, तो कभी जरूरत ही नहीं पड़ी आज तक। क्वेरी में क्वेरी करते हैं तो कोई तो चलो मेरे पास है इंट आई इक्वल टू 50 और दूसरा ऑप्शन है इंटीजर आई इक्वल टू 50, दोनों लाइन कंपाइल होगी कि नहीं होगी? Sorry, int I equals to 50, उसके नीचे की लाइन पे लिखा है इंटीजर आई इक्वल टू 50, विल बोथ लाइन कंपाइल और नॉट इन JDK 1.5? क्वेश्चन समझ नहीं होगा? होगा। क्यों होगा? विच फीचर विल गेट यूज फॉर दिस? अभी इन्होंने बोला ऑटो बॉक्सिंग, इंटरनली क्या कर देता है वो? हाँ समझ में आया। दो में से कौन सा यूज करोगे? इंटीजर आई। दो ऑप्शन है आपके पास, कौन सा? इंटीजर आई। ऐसा क्यों? मुझे ज़्यादा यानी ज़्यादा फीचर पर कौन सा फीचर? क्या फीचर? इधर समझ में आया क्वेश्चन? कंपाइल होगा नहीं होगा? दो लाइन हो जाएगा ना? मैं पूछ रहा हूँ कौन सा यूज़ करोगे दो में से? दोनों ऑप्शन है आपके पास ना,
कौन सा यूज़ करोगे? इन्होंने बोला इंटीजर ए इक्वल टू 50, समझे? हाँ, तो कौन सा, तो ठीक है, तो क्यों? Because it's given the object हाँ, that तो A is act as object, so when we are passing to anyone, there is no need to conversion that like a object to primitive. So best way to passing object. वही एक तरीका है। इधर तो देखो ऐसा है, इंटीजर i इक्वल टू 50, 50 तो मिल ही गए, साथ में i इज एलिजिबल टू कॉल एवरीथिंग ऑफ, कैपिटल इंटीजर। समझे? वहाँ पे ऐसा है कि नीचे के लाइन पे a इज वो नहीं है ना, इंट i, तो एटलीस्ट यू गेट सम मेथड्स टू कॉल। फीचर मतलब क्या होता है? मेथड। इसका फीचर मतलब कोई जनरल बॉडी ये नहीं बतानी हो वहाँ पे कोई, समझा? कुछ मेथड एक दो तो एक्स्ट्रा कुछ तो मिलेगा ना। ये तो अभी कन्विंसिंग है, आगे वाले को थोड़ा तो कन्विंसिंग लगे कि आपने जैसा पासिंग वासिंग बोला, तो उससे सिंपल क्या है, यहाँ पे आई डॉट कुछ तो कर सकते हैं। एक हाथ तो मेथड नहीं, 10 तो मेथड होगी एटलीस्ट, तो उतना एक्स्ट्रा मिला कि नहीं मिला? अरे ऐसा क्वेश्चन ही नहीं है, ये प्रोग्राम में नहीं लिखा। वो मेरा पूछने का मतलब ये था कि इंटीजर i इक्वल टू 50 लिखा है, होगा कि नहीं होगा कंपाइल? बस वो डिलीट करो। इंट i इक्वल टू 50 होगा कि नहीं? अब दोनों को डिलीट करो। अब मैं वैसा ही पूछ रहा हूँ ब्लाइंडली, अब लूप से बाहर आ जाओ। अब बोल रहा हूँ दो में से अच्छा कौन सा है, अब समझे? एक के नीचे लिखने के लिए नहीं बोला मैंने, ठीक है? तो जो भी है, क्लियर है? अगेन आप नहीं थे, कलेक्शन एंड कलेक्शंस, व्हाट इज डिफरेंस? एक आप बताओ। Collection is an interface. हाँ। Collections is a class. Collections class provides the methods for collections. है ना, बस सही है, इधर याद रहेगा, ठीक है? नाउ hasset has add method, so it doesn't allow duplicates. तो पहला एलिमेंट को रिमूव कर देता है और फिर डुप्लीकेट डालता है, या दूसरे को अलाउ ही नहीं करता? क्वेश्चन समझ में आया? डुप्लीकेट अलाउ नहीं है, तो पहला एलिमेंट डाला, फिर से वही डालने गए तो पहले को निकाल देता है, या खुद दूसरे को बोलता है ही नहीं, समझे? सेकंड को इग्नोर कर देता है। इन हैश मैप समवट रिवर्स। इन हैश मैप व्हाट हैपेंस, नए को रखता है, पुराने को रिटर्न। आप बताओ, आई हैव 5 एलिमेंट्स इन अर लिस्ट, आई वांट टू ऐड नाउ 1 एलिमेंट आफ्टर सेकंड एलिमेंट, तो टोटल एलिमेंट 6 हो जाएगा। कैसे ऐड करूँ मैं? सर 5 है, you want to add 6th element, बट नॉट आफ्टर एट लास्ट, वेयर आई वांट टू ऐड पहला, दूसरा और तीसरा नंबर मेरा आना चाहिए, फिर जो सब लिस्ट। सुनो, तो बाकी की जो 4 बचे नीचे आ जाने चाहिए ना। तो टोटल कितने एलिमेंट है? 6, तो वो छोड़ दो। मेरे को सिंपल क्वेश्चन है कि 5 एलिमेंट है, यहाँ पे फिट करना है। सब लिस्ट में व्हाट विल हैपन विद सब लिस्ट? वो तो तोड़ के दे देगा, तोड़ना है किसी को अपने को, जोड़ना है कुछ दूसरा। Use the index. Index of method. सेट मेथड। समझे गए? सिर्फ ऐड ही मेथड नहीं होती, और एक कौन सी मेथड होती है? सेट। सेट में क्या क्या, अभी देखो ऐड मेथड क्या कहाँ ऐड करता है बताओ? लास्ट। हमेशा पीछे से लास्ट में ऐड कर देता है। बट एक सेट मेथड ऐसी है जिसमें इंडेक्स भी डाल सकते हैं और एलिमेंट भी डाल सकते हैं। तो सचिन आप बताइए, सेट मेथड में उन्होंने 2 एलिमेंट मांगे, दोनों का डेटा टाइप क्या होगा बताओ? क्या सोचते हो? जस्ट इमेजिनेशन, क्वेश्चन नहीं समझा। इंडेक्स सेट से क्या होता है? इंडेक्स बीच इंडेक्स में। पे वैल्यू सेट हो जाती तो बताओ, तो दोनों डेटा टाइप बताओ। पहला डेटा टाइप क्या रहेगा? है। इंटीजर रहेगा। हाँ, दूसरा सेकेंड ऑब्जेक्ट। पता है ना अरलिस्ट क्या करता है? अब बताओ, इटरेटर और इन्यूमरेशन में क्या फर्क है? Iteration. क्वेश्चन समझ में आया ना? इटरेशन किधर चले गए? इटरेटर पूछा गया और इन्यूमरेटर। इटरेशन है कि इटरेटर है? इटरेटर है ना। हाँ, तो फिर इटरेटर और Enumeration. वो भी इन्यूमरेटर है ना? इन्यूमरेटर। सही बोल रहा ना? हाँ, तो मेरा क्वेश्चन है इटरेटर और इन्यूमरेटर में क्या फर्क है? Enumerator legacy class है और iterator नहीं, हाँ बोलो दूसरा पॉइंट।
बोलो 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 फटाफट फटाफट फटाफट। और iterator Iterator is an interface which is used with the array list, linked list, and all other classes. It's supporting all 6 classes, and enumerator is used with a vector. It is only readable format. It's not allowed also to delete the data, but in iterator we can add and also remove the data. That's the difference. And then enumerator we cannot use with the 6 classes, that is array list, linked list, etc. It is only applicable for the vector. But major point I will concentrate on like read only. This enumerator is read only. Why? Because only 2 methods. Which 2 methods? Has more next And next bus. It doesn't have anything to go previous and लिस्ट इटरेटर और इटरेटर में फर्क बताइए। List iterator allows us to iterator is a one direction. It's having 2 methods, that is has next and next for iterating the values, whereas a list iterator having 2 ways, that is one forward, that by using the has next and next, and it's also giving us a has previous and previous method to going in the reverse direction also. So there is a difference. So ultimately list iterator has more feature than Iterator. किस बेस पे बोल सकते हो ऐसा? लिस्ट इटरेटर सब है और इटरेटर सुपर है। लिस्ट इटरेटर सब है और ये सब इंटरफेस है। सब इंटरफेस इटरेटर का ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं बताओ? iterator itr equal to list array list का al dot iterator. इटरेटर मेथड का है कोई है क्या? कलेक्शन से पूरे इटरेटर मेथड कलेक्शन में ही रहने वाली है क्योंकि इंटरव्यू कलेक्शन का ही चल रहा है, तो कलेक्शन एक बहुत बड़ी चीज़ है। कलेक्शन इंटरफेस एक बहुत बड़ी चीज़ है। मैंने पूछा कि इटरेटर मेथड कहाँ इम्प्लीमेंटेड है, अब बताओ आंसर। क्वेश्चन समझ में आया ना? इंटरफेस में इम्प्लीमेंटेशन होता है क्या? होता है क्या? नहीं होता है ना। फिर तुम्हें बेसिक नॉलेज नहीं कि इंटरफेस में इम्प्लीमेंटेशन होते हैं क्या? अभी मैंने वही चीज़ बोला ना उनको, बोला ना। इधर फिर क्या बोल रहे हैं? तुम बोल दो सेट में होता है, सेट सारे इंटरफेस। जो कलेक्शन इंटरफेस जो कुछ भी आता है तो इंटरनली मुझे क्वेश्चन समझाओ तो क्या क्वेश्चन है? iterator मेथड कहाँ पे इम्प्लीमेंट किया हुआ है? हाँ, मतलब बॉडी कहाँ लिखी है, ऐसा ब्रैकेट और ऐसा ब्रैकेट कहाँ लिखा है? नहीं आपको नहीं सर इम्प्लीमेंट कहीं नहीं है ना? इम्प्लीमेंट नहीं है सर कहीं पे नहीं है ना? कहीं पे नहीं है। ऐसा हो सकता है क्या कि मेथड लिखी और उसकी बॉडी नहीं लिखी, वो इंटरफेस से इतना बड़ा काम कर दे रहा? क्या इटरेटर आईटीआर इक्वल टू क्या लिखते हो? एल डॉट इटरेटर लिखते हो ना? इतना बड़ा आईटीआर ऐसे दे देता क्या वो बिना बॉडी के? ऐसा हो सकता है कभी? क्वेश्चन समझ में आया आपको? तो हर इंटरफेस की हर मेथड को कोई ना कोई क्लास क्या करता है, इम्प्लीमेंट करता है ना, कोई ना कोई। ठीक है, तो ढूंढना आज। ठीक है, मैं 2 ऑप्शन देता हूँ, एब्स्ट्रैक्ट लिस्ट नाम के क्लास में होगा, नहीं तो एक्स्ट्रा कलेक्शन और अच्छे से क्वेश्चन को समझ लेते जाओ। आगे वाले को 2 बार पूछो क्वेश्चन, समझा? कुछ भी बोलने से, क्योंकि क्या है वो क्रॉस क्वेश्चनिंग करता है और फिर उसको लास्ट रिजल्ट देते समय ये याद रहता है कि ये कॉमन सेंस यूज नहीं कर रहा, जबकि आपको पता है, मुझे भी पता है कि आपको ये पता है कि लिस्ट में होता है कि, पर आप बोलते समय बहुत थोड़ा सोच के बोला कि आगे वाले को ये नहीं होता, वो पॉइंट नहीं तो याद रह जाता ना। और यार इसको, जबकि आपको पता है, पर मेरे को क्या याद रह जाएगा जब रिजल्ट दूंगा, यार ये बंदे को ना इंटरफेस में बॉडी होती है यही नहीं पता है, नहीं होती करके पता नहीं, तो वो पर पता है ना आपको, तो क्यों ऐसे फल। फॉर ईच मेथड क्या होती है ये देखिए कि फॉर ईच कब आई है? कब आई मतलब क्या पूछना चाह रहा होगा मैं? लॉन्च वॉन्च तो
हाँ मतलब ये लॉन्च डेट वगैरह नहीं पूछ रहा, ऐसा मतलब भाई कब आई, मतलब इस कौन से वर्जन में इसको डाला गया, कब आया। 1.5 मैं फॉर ईच पूछा तो फॉर ईच पे रहो ना, आपका इनहांस फॉर लूप में जा रहे हो। फॉर ईच और इनहांस फॉर लूप एक ही चीज़ों का नाम है, तो आप इनहांस फॉर लूप बोलने से अच्छा उसका ने जो पूछा उसी का आंसर दिया तो अच्छा लगेगा ना। कब आई तो आप ऐसा बोलो लगे तो अरे आस्किंग अस वर्जन, कोई प्रॉब्लम नहीं ना, मेरा अलग सेंस हो सकता है, आपका अलग। एक बार कंफर्म कर लो कि भाई वर्जन बताओ क्या है, फिर वर्जन ही बताओ चुपचाप, उसको इनहांस फॉर लूप काय को बोल रहे हो। ये बोलो कि फिर थोड़ा सा एक्स्ट्रा बोलो, अदरवाइज कि इसी को इनहांस फॉर लूप भी बोलते हैं तो सही लगेगा ना। सिर्फ ऐसे ही इनहांस फॉर लूप बोल दिया चले, इधर समझ में। राइट डाउन सिंटैक्स फॉर इनहांस फॉर लूप। ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट इंट है वो जेनेरिक। एक्सेप्टेंस होता है। तो बताओ इनहांस फॉर लूप यूज करने के लिए क्या क्या है। एक तो 1.5 यूज होना चाहिए, और क्या सोचते हो? बोलो क्या होना चाहिए? और जेनरिक, समझे? करता है मींस इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट सीक्वेंस नहीं करता। डिक्रीमेंट करना है तो कैसे करेंगे इनहांस फॉर लूप में? क्वेश्चन समझ में आया ना? हाँ कैसे? न्यूट्रल है पर कैसा ऊपर जाएगा नीचे जाएगा? डिक्रीमेंट नहीं कर सकते, समझ में आया क्या? टॉप टू बॉटम कोई काउंटर है क्या इसमें? कुछ दिख रहा है क्या? तो आपके हाथ में कंट्रोल है क्या? तो आगे वाले को आंसर क्या देना चाहिए आपने? कैन नॉट बी, बस वी डोंट हैव एनी कंट्रोल, सिंपल, समझे? तो मतलब दो फॉर लूप है जावा में, सही है। एक सादी फॉर लूप और ये दूसरी फॉर लूप, ऐसा लगता है कि आपको? नो सर, ये इंटरनली इंटरनली समझे ना? इंटरनली ये भी एक फॉर लूप ही है, क्लियर? तो ये भी आपको समझ में आ ही गया। उसके बाद नाउ यू हैव कलेक्शन टॉपिक। आई वांट वेरी स्पेसिफिक थिंग्स। These are the things in collection introduced in 1.5, like that sentence I want. These are the things introduced in 1.6, like that sentence I want. In collection framework. समझ में आया क्वेश्चन ना? चलो 1.5 generics. जेनरिक्स आया, और इनहांस फॉर लूप आया, और क्या आया? ऑटो बॉक्सिंग को internally provide करना। ऑटो बॉक्सिंग भी आया, ये 1.5 में आया, ठीक है। क्यू कब आया? 1.5 में आया, और हाँ? 1.6 में आया, और ब्लॉकिंग डीक्यू वगैरह सुना है कभी? 1.5 क्यू के अंदर क्यू के अंदर जो है वो सब 1.5। अल्लाह कंफर्म, ठीक है। सो यू विल चेक इट, ठीक है। लिखा क्वेश्चन, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ जेनेरिक्स? हाँ, एक तो ऑटो बॉक्सिंग का एडवांटेज, और कुछ फायदा हुआ क्या उससे? टाइप कास्टिंग Enhanced for loop यूज कर सकते हैं। और टाइप कास्टिंग, अब उन्होंने वही बोला, ऑटो बॉक्सिंग का मतलब ही टाइप कास्टिंग। और Enhanced for loop यूज कर सकते हैं with the help of generics। हाँ जी, वो एक फायदा, इनहांस फॉर लूप यूज कर सकते हैं। और आगे क्या? सेफ्टी होता है। और जब हम इटरेटर लगाते हैं, इटरेटर को भी जेनरिक्स लगा दो तो वही ऑटो बॉक्सिंग ईजी हो जाता है, बार बार टाइप कास्टिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती, याद रहेगा। अब वेक्टर जो है, लिखा हो गया। वेक्टर को एक साथ 1 लाख लोगों ने कॉल किया, और तुरंत, वेक्टर नहीं, हैश मैप, 1 लाख लोगों ने हैश मैप के अंदर एलिमेंट डाल दिया, तो आपको नहीं लगता उसको कुछ इम्पैक्ट होगा? फट नहीं जाएगा? इतने सारे लोग एक ही हैश मैप को कॉल कर रहे हैं, कॉन्करेंट ये चीज़ होगी ना। तो क्या यूज़ करना चाहिए उसकी जगह? Hashmap is synchronized। हाँ, हैश मैप इज Synchronized। सेम है, हैश मैप सिंक्रोनाइज होता है।
उसकी जगह तो हैश टेबल वो होता है कि हैश मैप होता है? तो मैंने क्या पूछा? हैश मैप, राइट। वो भी क्या वो क्लास वो हैश टेबल ही सिंक्रोनाइज होता है क्या? तो कभी बोलोगे क्या ऐसा? प्रॉपर सेंटेंस यूज कर सकते हैं ना कि हैश टेबल के अंदर की मेथड। तो अपना क्वेश्चन वो होता है हैश मैप, तो आपको बोलना है कि इम्पैक्ट होंगे जरूर, बट इस भी 1.5 में एक चीज़ आई है, क्या है? कॉन्करेंट हैश मैप। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, आप तो नहीं होंगे, वो यूज़ करेंगे फिर हो सकता है नहीं, तो पढ़ना भी पड़ेगा, उसके लिए पढ़ाई होनी चाहिए, तब जाके तो आंसर दोगे। सिर्फ बोल के नहीं आया, क्योंकि वो नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछेगा कि व्हाट इज दैट, हाउ टू क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ इट। क्लियर? कैन यू क्रिएट क्लोन ऑफ अ लिस्ट? कैसे बता दे बताओ? लिखो ना, कोड लिखो, क्वेश्चन समझ में आया? बताओ, लिख के दिखाओ तो। देखो, अर लिस्ट AL इक्वल टू न्यू लिस्ट, लिखो, मैं बताता हूँ। और एक आध एलिमेंट डाल दो, AL डॉट एड 5-6 डाल दो, डाला तो मुझे सब क्लोन बना के दिखाओ। अब उसके नीचे के लाइन से कोड चालू होना चाहिए क्लोनिंग का, क्योंकि यहाँ ये जो लाइन आपने लिखी AL डॉट एड, यहाँ पे अर लिस्ट फिनिश हो चुकी है, बनी है। इसके नीचे के लाइन में क्या चाहिए मुझे? कुछ तो क्लोनिंग का लिखो। अब कहीं पे भी कुछ क्यों, ये इसलिए बोल रहा हूँ कि आप कुछ क्लोनेबल इंटरफेस वगैरह बोल रहे हो। So directly we can assign this one. हाँ, ये भी हो गया एक, तो इसलिए कि उसका रेफरेंस उसको दे दिया। बट क्लोन मतलब ऐसा होता है क्या? ये आपने क्या कर दिया पता है क्या? एक रैम में इन्होंने अर्लिस्ट बनाई और इन्होंने फिर नया अर्लिस्ट AL1 है और उसको पॉइंट कर दिया। AL1 और AL दोनों एक जगह जा रहे हैं, तो क्लोन मतलब ऐसा होता है क्या? आपने किसका क्लोन बना दिया? एड्रेस का बनाया। मुझे किसका चाहिए? सिंपल, ये हो गया। देखो ये क्लियर, क्या लिखा? AL डॉट फिनिश हो गई बात। कुछ क्लोनेबल इंटरफेस वगैरह लॉजिक लगाया क्या? क्यों नहीं लगाया बताओ, बोलो। हाँ, बट टाइप कास्टिंग नहीं, क्योंकि गलत, वो इंटरनली करेक्ट। कौन? अर्लिस्ट नाम का क्लास, ये देखा? इम्प्लीमेंट करता है। टाइप कास्टिंग करना पड़ता है। हाँ, करना पड़ेगा बट आपका गलत ये नहीं है टाइप कास्टिंग। एल नहीं लिखा जब आप। हाँ, वो गलत है, वो गलत है, वो मैं बोलना चाह रहा था। ठीक है, हाँ, समझे आप? समझे आप? क्लोनेबल इंटरफेस और लिस्ट इंप्लीमेंट करती है, समझे? ये भी थोड़ा बहुत नॉलेज चाहिए किसको इंप्लीमेंट करता है, तब जाके तो डॉट क्लोन कर पाए ना आप, अदरवाइज कर पाते क्या? ठीक है, अगर हमने लिस्ट लिया है और 1 लाख लोग कॉन्करेंटली कर रहे हैं तो इसको भी वही प्रॉब्लम हो जाएगा। कॉन्करेंट अर्लिस्ट होती है क्या? नहीं होती, तो फिर प्रॉब्लम आएगा ना। हाँ। नहीं करते, वेक्टर करेंगे लोग यूज, हो सकता है। ठीक है, या तो उसमें कुछ बनाया नहीं उन्होंने। You tell me any real time your experience where you have used hash map. अब मुझे पहले मेरे क्वेश्चन को अच्छे से समझाओ, क्या पूछा है मैंने? Real time example of hash map in where I have used. हाँ, बताइए। I was given list of state and country. In that I have to sorted the cities according to the state or country. Number of states were there and number of cities were there. I have to sort according to the key value pair. Means if I select the state Maharashtra, then the cities in the Maharashtra state will be automatically come in that. Populated, हाँ। Yes, populated. तो there I have used a hash map. Why? हाँ। Okay, I have taken the key as a Maharashtra and the value array list of the cities I have passed in there. Okay. So Maharashtra is the key and cities are. Array list of the cities. So you added a relation to hash map. Yes. Again, anyway. When I want to give a tree like structure, that is first is the root, another. You tell me where you have used. Don't assume anything. Same example. Otherwise, nowhere used. If I want to count the number of employees in all the steps, all the cities, then
city. I will make city as a key and employee as a I am asking where you have used in your project. Don't give imaginary examples. समझे क्वेश्चन? हाँ, बस वो बताओ. इधर Mobile. क्या? Phone. It's employee phone, and then another we use the array list for phone number. आपने किया क्या ये? Yes. हाँ, क्या बताओ फिर कैसे किया? हैश मैप में की वैल्यू डाली वो फोन की मीन्स की एज अ की और अरे लिस्ट डाला हैश मैप में मोबाइल नंबर. हाँ, मतलब इनके जैसे इन्होंने जैसे स्टेट्स डाली. हाँ. इधर अभी तक यूज ही नहीं किया. इधर क्या है स्टेट्स? वो कुछ और ही बोले है. वो इतना अच्छा ये नहीं है. उसके ऊपर मुझे ये भी उसके जैसे यूज कर लिया क्या आपने? सर मैंने खुद का कुछ लॉजिक नहीं लगाया. कॉलेज और डिपार्टमेंट में मैं हाँ, बताओ ना बताओ. I have used different departments हाँ. and puts that departments in take that departments and put in hash map as a value and college name is the my key. Then I have used departments. मतलब कॉलेज का नाम एक की थी और उसके अंदर एक अर्लिस्ट थी जिसके अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट थे. फिर उसके अंदर भी डिपार्टमेंट्स थे वो हैश मैप थे. फिर उसके अंदर डिवीजन थी. ठीक है. अब मैं एक सिंपल चीज़ बोलूँ क्या? मैं बताता हूँ कहाँ यूज़ किया मैंने. साइन अप पेज वगैरह बनाया होगा सबने. उसमें कंट्री का लिस्ट बॉक्स था क्या? नहीं होगा तो इमेजिन तो कर सकते हैं. रहता ही है जनरल. वो छोड़ो कंट्री के ऊपर स्टेट वगैरह होता है ऐसा. आप जब सबमिट बटन दबाते हो तो डेटाबेस में क्या जाता है? कंट्री का नाम जाता है, उसका आईडी जाता है. क्वेश्चन समझ में आया क्या मेरा अच्छे से? क्या जाता है? जाता है. तो जब उधर से डेटा जब लाए थे आप कंट्री का, कैसे लाए थे? हाँ, आईडी के साथ. मतलब कैसा? वन आईडी और उसके अगेंस्ट में क्या था? इंडिया. ऐसे लाया होगा ना. 1 इंडिया, 2 जापान, 3 भूटान, 4 नेपाल. ऐसे लाया होगा. किस में डाल के लाया होगा वो? एक इमेजिनरी हैश मैप. फिर हैश मैप को इधर ही ट्रेड कर दिया. लोगों को वैल्यू दिखाई, बैकग्राउंड में क्या रखा? की. ये समझ में आया कुछ? पक्का समझ में आया. डेटाबेस को सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कंट्री किया होगा तो क्या क्या आया होगा? कंट्री आईडी एंड कंट्री नेम. तो उसको हैश मैप में डाल नहीं सकते क्या? फॉर लूप लगा के डाल सकते ना. इधर हैश मैप लेके भी आए होंगे. कहाँ पे? JSP पे. हैश मैप को इटरेट करना पता है तुम्हें? आता है. ठीक है. तो ये सिंपल सा एग्जांपल नहीं था क्या? आपने जो बताया वो भी सही है. रियल टाइम मतलब जो है वो बता. मैंने ये नहीं बोला कि मेरा एग्जांपल बताओ. कहीं ना कहीं यूज. Now all people write the code on page iterating a hash map. क्या बोला मैंने? लिख के दिखाओ हैश मैप इटरेट करने का कोड. HM रेडी है आपके पास. By using 1.5 purely all concepts of 1.5 should get used. पहले हैश मैप बना भी लो. हैश मैप HM न्यू हैश मैप और एक दो एलिमेंट भी डालो ना. जिन्हें क्वेश्चन नहीं समझ में आया पूछो. की सेट मेथड का रिटर्न टाइप क्या है? कहीं पे है भी कि नहीं है मेथड? की सेट. हाँ, मैप नोट एंट्री में आपने लिखी नहीं हो. फिर भी मैंने तो सही बोला था आपको. की सेट. हाँ, यहाँ पे की सेट नहीं यूज किया. फिर क्या है? एंट्री सेट. फिर? मैंने सेट में ठीक है. दूसरा रिटर्न टाइप सेट है. क्या है? ऐड मेथड का इनपुट टाइप क्या है अजय जी? ऐड मेथड का इनपुट. ऐड मेथड अर्लिस्ट में राइट. इसमें कि बताओ इनपुट ऑब्जेक्ट. इधर याद है. और रिटर्न टाइप गेट मेथड का और इनपुट टाइप इंट है और रिटर्न ऑब्जेक्ट है. सही है. कितने एलिमेंट अर्लिस्ट में जा सकते ज़्यादा से ज़्यादा? You can at least the dynamic basically. You can add up to 10 first instance. When you are adding 10, it is it gives the to it's 50% increase in the Max वन value. बैच Max value. समझे? ऐसा है क्या? कितना तो मैक्स वैल्यू ऑफ 20%. Collection dot max value. कलेक्शन डॉट मैक्स से कहाँ से आ गया मतलब? नहीं max value एक में करें. ओके. कलेक्शन डॉट वो मैक्स वैल्यू क्या मतलब?
20 कितनी भी एलिमेंट डाल किसी सकते भी डाल सकते हैं। हैं। तो निकालते समय तो गेट मेथड क्या मांगता है? लॉन्ग मांगा क्या उसने? लॉन्ग डाल सकते क्या उसमें? जो मांगा वही डाल सकते ना। 1,00,000 लॉन्ग है कि इंट है? 1 करोड़ लॉन्ग है कि इंट है? लॉन्ग है। तो उसमें से निकाल कैसे सकोगे फिर? 1 करोड़ एलिमेंट तो डाल दिए। गेट मेथड सपोर्ट करेगी क्या आपको? करेगी क्या? कैपेसिटी इंटरनली कभी आज तक देखा क्या बड़े का छोटा होते समय? ऐसा मतलब सॉरी क्या बोलते हैं, लॉन्ग 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 इंटीजर में कभी जा ही सकता है क्या? इंटीजर लॉन्ग में जा सकता है, इंटरनली बोलो जैसे ही बोलो, सही है कि नहीं? और ऐसे कैसे हो जाएगा? तो क्वेश्चन सबको समझ में आ गया होगा। गेट मेथड इंट है, बट मुझे बड़ा नंबर निकालना जो इंट से रेंज के बाहर का है, तो कैसे निकालेंगे? ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है? लिखा? कैसे याद रहेगा फिर? आंसर तो आया नहीं अपने को, फिर क्या करना चाहिए? ठीक है, अजय जी, सेट मेथड में जो गेट मेथड है उसका इनपुट टाइप क्या है? सेट मेथड में गेट सेट में की गेट सेट इंटरफेस में गेट मेथड जो है उसका क्या है? इंट और रिटर्न टाइप? सचिन, क्वेश्चन समझ में आया? सेट के अंदर जो गेट मेथड है उसका इनपुट टाइप क्या है? और समझे क्या? अभी याद आया क्या? क्यों टाइम लगता है ऐसे क्लिक होने में? अब इससे क्या समझेगा? होशियार है, आता है आपको, नहीं आता है, या क्या समझेगा? है रिजल्ट आप ही को देना है। देखो, आप मेरी जगह बैठो और मैं आपकी जगह बैठो और बाद में तुरंत याद आ जाए तो उसको क्या बोलेंगे? आया कि नहीं आया? नहीं आया, सिंपल है। एग्रीड इधर अभी याद आया क्या? सेट में गेट मेथड नहीं है, तो अभी याद आके पर फायदा है क्या? चांस गॉन, क्योंकि आप फिर से वही करने वाले हो, दूसरी जगह भी जाओगे तो, सही है कि नहीं? इसलिए पहली बार ही अपना रिपेयर होना चाहिए कि नहीं? और सबसे बुरा क्वेश्चन जो रहा इस इंटरव्यू में वो हैश में आपको इटरेट ही नहीं करते हैं, समझ रहे हो? जो कि आना ही चाहिए था फुल फ्लेज। किया है, मतलब 2 लोगों ने किया, आपने बाद में भी किया, बट इधर क्या क्या बेसिक कर दिया कि वैल्यू डालनी पड़ती है, होता है। अरे लिस्ट लिखिए, अरे लिस्ट, फिर जेनेरिक्स का ब्रैकेट खोलिए, अर्ली जेनेरिक्स का ब्रैकेट खोला ऐसा, उसमें लिखिए ऑब्जेक्ट, फिर स्पेस देके एल इक्वल टू न्यू अरे लिस्ट और कंस्ट्रक्टर के 2 ब्रैकेट, बस। ये कंपाइल होगा कि नहीं? दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन, करके देखना होगा। उसके बाद और कंस्ट्रक्टर के ब्रैकेट के बाजू में इंटीजर लिखो। पता है ना कहाँ लिखते हैं? लिस्ट वर्ड के बाद इंटीजर लिखो, जेनरिक्स वाला। पहला क्वेश्चन फिनिश हो चुका है, उसका आंसर सिर्फ इन्होंने दिया, वो भी सही दिया, बाकी लोगों ने दिया नहीं और कुछ लोगों ने गलत दिया, ठीक है। हाँ, दूसरा क्वेश्चन क्या चालू हुआ? अरे लिस्ट ऑब्जेक्ट एल इक्वल टू न्यू अरे लिस्ट, और उसमें क्या लिख कर रखा जेनरिक्स में? इंटीजर। विल इट कंपाइल आर नॉट? ऑब्जेक्ट प्लस इंटीजर। आप इधर सही लिखा है कि नहीं? दिखाओ। इसमें क्या मिस्टेक है बताओ तो। इनको दिखाओ तो, एंगुलर। चलो दोबारा लिखो, लाइन पूरी काट के दोबारा लिखो, तब तो मजा आएगा ना। इधर दिखाओ तो लिखा है कि नहीं? मैंने न्यू, ये अर्लिस्ट के पहले इंटीजर लिखते हैं क्या ऐसे? दिखाओ। ये ऐसे इधर उधर कुछ भी लिख देते हैं, इधर पहले लिखा है, इधर न्यू के तुरंत बाद ऐसा होता क्या? तो अब मेरा कहना था इधर ऑब्जेक्ट और इधर इंटीजर, तो वो नहीं, इधर नहीं लिखो पहले। प्रैक्टिस इधर लिखा है, दिखा। ये हो सकता क्या? ऐसा होता है क्या कभी? नहीं होता है।
दोन्हीकडे सेम पाहिजे. समजलं का? तर काय झालं निखिल? रिजल्ट सब क्लास फेल. फेल. रिजल्ट इज फेल और कुछ नहीं उसमें. डिफिकल्ट था क्या ये पढ़ाया हुआ है, प्रॉपर पॉइंट बताया हुआ है. आप मैडम जी दिखाओ, लिखा के नहीं अभी भी सही? हाँ अब सही है. ठीक है, तो हमेशा कंप्यूटर हाथ नहीं लगाएंगे ना. फिर तो ये सब मिस्टेक्स है, इसको सुधारो. सॉलिड पे जाना चाहिए क्या अभी? कुछ ना है सॉलिड जेएसपी के, ये थोड़ी सी रेस्ट चाहिए. हैं? अभी रेस्ट लो, 5 मिनट बाद फिर वो लेते. ठीक है, चलो.